میں مصروف ہیں اور میں یہ خیال کر رہی تھی حضرت عائشہ اپنے حجرے میں آئی، اتنے میں آقا علیہ السلام تشریف لے آئے۔ ماں عائشہ کی عمر اس وقت بہت کم تھی، تیز چلتے چلتے آئی تھی تو آپ کی سانس جو ہے چل رہی تھی، تیز تیز سانس لے رہی تھی۔ جب کوئی دوڑ کے آتا ہے تو جو کیفیت ہوتی ہے وہ کیفیت حضرت عائشہ کی تھی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ یہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ نے اپنا سارا ماجرا بیان کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ کیا تم نے یہ خیال کیا اللہ اس کا رسول تمہارے ساتھ خیانت کرے گا؟ اے عائشہ کیا تمہیں معلوم نہیں یہ شب برات ہے، یہ نصف شعبان کی رات ہے، یہاں اللہ جل شانہ قبیلے بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اے عائشہ کیا تم مجھے عبادت کی آج رات اجازت دیتی ہو؟ حضرت عائشہ نے عرض کیا کیوں نہیں سرکار، ضرور عبادت کریں۔ آقا علیہ السلام عبادت میں مصروف ہو گئے۔ ماں عائشہ فرماتی ہیں میں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا، آقا علیہ السلام نے سجدے میں سر رکھا اور سجدے میں دعا ہو رہی ہے، اللہ کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں۔ فرماتی ہیں میں نے اپنی نگاہوں کو جما دیا کہ آقا علیہ السلام سجدے سے سر کم اٹھائیں گے۔ آقا علیہ السلام نے بہت طویل سجدہ کیا، بہت لمبا سجدہ کیا، یہاں تک کہ میں دیکھتی رہی کہ اب سرکار علیہ السلام سجدے سے سر اٹھائیں، یہاں تک کہ فرماتی ہیں مجھے ایک خیال گزرنے لگا کہ کہیں سجدے میں حضور علیہ السلام کا وصال تو نہیں ہو گیا، آقا علیہ السلام کی روح تو نہیں پرواز کر گئی۔ اللہ یہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ذرا سوچو آقا علیہ السلام نے کتنا طویل سجدہ کیا ہوگا، حضور علیہ السلام کا سجدہ کتنا لمبا رہا ہوگا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خیال آنے لگا میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہاں تک کہ ماں عائشہ فرماتی ہیں میں قریب گئی اور میرا ہاتھ کا پنجہ آقا علیہ السلام کے قدم ناز سے ٹکرایا تو میں نے دیکھا حضور علیہ السلام دعا فرما رہے تھے۔ میں عرض کرنا چاہوں گا مسلمانوں، یہ شب بارات میں ان کا حال ہے، ان کا طویل سجدہ ہے، جو جانے نماز ہیں، جو جانے عبادت ہیں، جو سید المعصومین ہیں، جو امام الانبیاء علیہ السلام ہیں، وہ شب بارات میں اتنا لمبا قیام کریں، اتنا لمبا سجدہ کریں کہ ان کے حرم ناز کی رازدار سیدہ عائشہ فرماتی ہیں مجھے خیال آنے لگا کہ آقا علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ بتاؤ مسلمانوں ہمیں کیسی عبادت کرنی چاہیے، شب بارات میں ہمیں کیسے رہنا چاہیے، ہمارا رکوع کیسا ہو، ہماری نوافل کیسی ہو، ہمارا ذکر و اذکار کیسا ہو، ہماری عبادت کیسی ہو۔ لیکن اللہ خیر فرمائے ہماری یہ شب کہاں گزر جاتی ہے۔ اللہ خیر فرمائے مغرب بعد 6 رکعت نفل پڑھیں گے، اس کے بعد عشاء بعد جتنی مغرب میں تھے اس سے اللہ نصف بھی عشاء میں نظر نہیں آتے، پھر قبرستان وغیرہ حاضری دیں گے، پھر ہوٹل پر شب بیداری ہو رہی ہے، پھر ڈھابے پر شب بیداری ہو رہی ہے، پھر بائک کی ریسنگ لگائی جا رہی ہے۔ نصف شعبان یہ شب ڈھابا نہیں ہے، یہ شب ہوٹل نہیں ہے، یہ شب بائک نہیں ہے جو آنے والی ہے، یہ شب بارات ہے، یہ جہنم سے نجات کی رات ہے، یہ آنے والی مغفرت کی رات ہے۔ اس کی قدر کرو، اس کا ادب کرو، اس کا احترام کرو۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ذرا آپ اندازہ لگائیں حضور علیہ السلام کو اتنی عبادت کریں اور ہم اللہ اس رات کی ناقدری کرتے نظر آئے، یہ کتنی محرومی کا سبب ہوگا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تو اس رات بخشش عام ہو جاتی ہے، اللہ عز و جل کی جانب سے رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، کوئی ایسا نہیں جو محروم رہے۔ ہاں کچھ مجرمین ہیں وہ محروم رہتے ہیں،
वो अपने करतूत की बुनियाद पर, वो अपने जराइम की बुनियाद पर, हाँ अगर वो अपने जराइम से तौबा करें, वो अपने गुनाहों से तौबा करें, तो मौला उन पर भी करम की नजर फरमाता है, उन्हें भी बख्श देता है। वो कौन लोग हैं जिनकी इस रात बख्शिश नहीं होती? तो कई अहादीस में मुख्तलिफ मुजरिमीन का जिक्र आया, मैं सबका खुलासा अर्ज करता हूँ। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मफ़हूम हदीस है काते रहम, यानी रिश्ता नाता तोड़ने वाला बगैर वजह शरई के, उसकी बख्शिश नहीं होती। इसी तरह से कीना परवर, मोमिन से बुग़्ज़ व हसद रखने वाला, उसकी बख्शिश नहीं होती। बाप का नाफरमान, माँ का नाफरमान, शराब का आदी, जिना का आदी, सूदखोर, जुआरी, कवैया, गाना गाने वाला, फहश गाना सुनने वाला, ये वो मुजरिमीन हैं कि अल्लाह वो 1000 नवाफिल क्यों ना पढ़ डाले, पूरी रात सजदे में क्यों ना गुजारे, लेकिन जिसको सताया है, जिसका हक मारा है, उसको अगर राजी न करें, माँ नाराज है उनको राजी न करें, बाप नाराज है उसे राजी न करें, किसी को ज़बान से अज़ियत पहुंचाई है उससे माफी तलाफी न करें, तो याद रखो पूरी रात सजदे में गुजार दो, रहमत का एक छींटा न पड़ेगा, मग़फ़िरत का एक छींटा न पड़ेगा, जब तक अल्लाह अपने जराइम से तौबा न करो। आज माँ बाप की नाफरमानी आम है। अल्लाह साहबी रसूल हज़रत अलक़मा रज़ियल्लाहु ताला का वाक़या आपने बारहा सुना, मैं इख्तिसार से बस सरसरी तौर पर अर्ज़ करके गुजरता हूँ। सकरात में हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए हैं, लेकिन हज़रत अलक़मा की ज़बान पर कलमा जारी नहीं हो रहा। अल्लाह वो अलक़मा जो सहाबी हैं, आका अलैहिस्सलाम जलवागर हैं, बर्फ से नफीस हाजिर हैं, अल्लाह पर हुज़ूर अलैहिस्सलाम जलवागर हैं, लेकिन उनकी ज़बान पे कलमा जारी नहीं हो रहा। जिन्हें देख के पत्थर कलमा पढ़ते हैं, जिन्हें देख के शजर हजर कलमा पढ़ते हैं, जिन्हें देख के अल्लाह पर पहाड़ की बुलंदी, जमीन की पस्ती कलमा और दुरूद पढ़ती है। अलक़मा उन्हें देख रहे, ज़बान पे कलमा जारी नहीं हो रहा। मेरे आका ने फरमाया इनकी माँ को बुलाओ। सरकार ने फरमाया तुम्हारा मामला, अलक़मा का मामला तुम्हारे साथ कैसा था? माँ ने अर्ज किया मेरे सरकार मैं इनसे नाराज हूँ। नाराजगी की वजह ये है, ये मुझ पर अपनी बीवी को तरजीह देते थे, इसलिए मैं नाराज हूँ। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तो मेरे माफ कर दो। माँ माफ करने को तैयार ना हुई। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने आग भड़काने का हुक्म दिया। माँ ने अर्ज किया आप क्या चाहते हैं? फरमाया तुम्हारे बेटे को आग में जला दूंगा। माँ ने कहा एक माँ अपने बेटे को कैसे जलता देख सकेगी? फरमाया जो कैफियत अलक़मा की है, अगर मौत के वक्त इनकी ज़बान पे कलमा जारी नहीं हुआ तो ये हमेशा के लिए जहन्नम में जलेंगे, तुम ये कैसे देख सकोगी? माँ ने कहा अगर ऐसा है तो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपको गवाह बनाकर अर्ज करती हूँ, मैंने अलक़मा को माफ किया। जैसे ही माँ ने माफ किया, अलक़मा की ज़बान पे कलमा जारी हो गया और उनका खात्मा ईमान पर। ये किसकी पकड़ की गई? सहाबी रसूल की। अल्लाह सहाबी से लचक हुई, मां नाराज है तो सकरात में है, साथे मुस्तफा अलैहिस्सलाम पर से नबी जलवगर है, लेकिन अलक़मा की ज़बान पे कलमा जारी नहीं होता। मां ने माफ किया, ज़बान पे कलमा जारी हो गया। हम और आप किस शुमार में हैं? हम किस गिनती में हैं? हमारा नाम अमाल नेकियों से ओझल है, गुनाहों से बोझल है, गुनाहों की कसरत है। अल्लाह अकबर, हमारा खात्मा ईमान पर होगा, इसकी कौन सी गारंटी है? शबे बारात आने से पहले अपनी माँ को राजी करो, बाप को राजी करो। लोग पूरे जहान को राजी करना चाहते हैं, लेकिन माँ बाप को राजी करने की फिक्र नहीं। जब तो उनको राजी करना बहुत आसान है, चंद जुमले बोल दो, माँ सीने से लगा लेती है, माँ गले से लगा लेती है, बाप
माफ कर देता है, लेकिन अल्लाह लोगों को इसकी तौफीक नहीं होती। इधर उधर दुआएं कराते हो, अरे अपनी माँ से दुआ कराओ, अपने बाप से दुआ कराओ, न किसी पीर की तुम्हें दुआ की जरूरत पड़ेगी इंशाअल्लाह, न किसी इमाम की तुम्हें दुआ की जरूरत पड़ेगी। वजह ये मेरे सरकार ने फरमाया, पूरी दुनिया किसी के लिए बद्दुआ करे, उसके वालिदैन उसके लिए दुआ करे, तो मौला लोगों की बद्दुआ नहीं, माँ बाप की दुआओं को दे, उसकी रहमत वालिदैन की दुआ की जानिब मुतवज्जे होती है। और सारे लोग किसी के लिए दुआ करें, माँ बाप पर दुआ करें, तो लोगों की दुआएं नहीं कबूल होती। माँ बाप की बद्दुआ अल्लाह अकबर बाबे इजाजत से टकराती है और उसके लिए जिल्लत और रुसवाई का सामान हो जाता है। मैं अर्ज करना चाहूंगा, इसलिए इसी तरह अगर किसी ने किसी का हक मारा है तो उसकी भी निजात नहीं होती, उसकी भी बख्शिश नहीं होती। किताबुल कबायर में अल्लामा ज़हबी अलैहिर्रहमा ने एक बहुत दर्दनाक वाक़या बयान किया। फरमाते मक्का मुकर्रमा में एक बहुत नेकोकार शख्स रहता था, बड़ा परहेजगार था, उसकी परहेजगारी के चर्चे थे, दूर दराज से लोग आते और अपनी अमानत का माल उसके पास रखते थे और हज के बाद लोगों को अमानत सही और सालिम वापस लौटा दी जाती थी। एक हाजी साहब हज को आए, वो उनके पास सोना था, उन्होंने ख्याल किया भी मुझे अरफात हो जाना है, इतना हजारों का मजमा रहेगा, लाखों का, ये सोना मुझे इबादत में भी खलल डालेगा, इसको संभालना भी दुश्वार होगा, लाओ उस अमानतदार के पास रख देते हैं। रख के चले गए, अरे हज करके वापस आए तो उस अमानतदार अमीर का इंतकाल हो गया था। अब कहाँ जाए? उसके बेटों से आपने मुलाकात की तो बेटों ने कहा जी साहब, हमारे बाबा जिस तरह से अमानतदार थे हम भी हैं, मामला ये है हमारे बाबा का अचानक इंतकाल हुआ और उन्होंने कुछ बताया नहीं है, तो अब तुम्हारा माल सोना तुम्हें कहाँ से लौटाएं? बहुत परेशान हुआ। नमाज फज्र में उलमाए हरम के इमाम से उलमा से उन्होंने मुलाकात की, सारा मामला बयान किया। उन्होंने फरमाया घबराने की बात नहीं है, वो बहुत नेकोकार शख्स था, आप भी जानते हैं, वो यकीनन जन्नती होगा। जमजम शरीफ का जो कुआं है वो आइन जन्नत के लब पे मौजूद है, यानी जन्नत के दहाने पर है, जन्नत के मुंह पर है। अल्लाह तुम आज आधी रात में वहां जाना, उसे सलाम करना, वो जवाब देगा, फिर अपना मसला बयान करना, वो बता देगा, तुम्हारा मामला हल हो जाएगा। वो अल्लाह अकबर पहुंचा, जमजम के कुएं पर एक नहीं 3 बार सलाम किया, कोई जवाब न आया, बहुत परेशान हुआ। सुबह में फिर उन्हीं उलमा से मुलाकात की, सारा मामला बयान किया, तो उन्होंने पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहने लगे शायद वो अहले जहन्नम से है, फरमाया तुम यमन जाओ, यमन में बरहूत नाम का एक कुआं है,